Right. So I'll start with my introduction and introduction of my startup named Sharu Technologies. So my name is Hamis Said. I come from a project management background and then a development background. So I have been working with different IT companies, and then I thought to start my own startup. So we started Sharu Technologies in 2017 with a vision to introduce technology in sectors where it is less prevalent at that particular moment. We have been working in even technology sector, printing, agri-tech, and various other sectors since then. So the most challenging part for us was to keep a big team aligned. So that was something a lot on, and yes, this is something startups do struggle about. So there I came to know something about that there is a phenomena called lean startup, where you can actually narrow down things and then you can do wonders. Right. So there I came to know that I guess this is something that I need to tell our fellow startups, and especially the young energetic people over there who are just starting their journey in this particular field. So yes, today I'm going to talk about lean startup methodology, and I'm not going to show you any slides. I'm not going to tell you ABCs of lean startup methodology, or I'm not going to give you 6 Ws or 6 Hs, etc. I'm going to talk about very practical things, the very things I experienced in my startup journey, and the very things that you guys are going to experience in your startup journeys. Right. So Sad, meanwhile, would you like to tell me a little bit introduction of our audience? So from which sector we are having? Are they all students or all they are startups? So Hamid bhai, most of them are students from the age group 18 to 24. So we have, Okay. okay, yes. So the age group of these candidates as 18 to 24, and we have selected them with the competition of a very high number of applications. We have got 3,100 applications, and after rigorous selection and interviews of some candidates, we have selected the top 25 candidates for our, because we have obviously 25 seats for this camp. So these all are students, and they have no startups, and we are actually creating their startups with them. So we have started with the basic entrepreneurship, as we have started in IBA Karachi, about the bird in hand theory, the affordable Sad, loss your voice theory. is getting distorted. Okay, so am I Can clear you check your now? internet connection? Am I clear now? Can anyone tell me कि I am clear or Yes, not? yes, yes. Okay, so Hamid bhai, are you there? Okay, so that's probably the problem with. Sir. Okay, okay, Hamid bhai, can you hear me? Yes, I can. Okay, Uh, so I lost you yes, for a yes, couple of seconds, I guess. yes. So we are actually creating their startups with them, along with them. We have started with the basic entrepreneurship rules, like the methodology, as we have studied in IBA Karachi, about the bird in hand theory, the affordable loss theory, the pilot in the plane theory. We have started from this journey, and the later on stages we will actually create their startups from finding a right co-founder to find an investor, and to market and push their products or services to the market. So we have developed the whole mechanism in 6 weeks, and we are with them, and we have an entrepreneurs like you on board with us, who will let them understand these types of methodologies through experiential learning, actually. So that's all about their introduction. Awesome. That's really awesome. And congratulations, all of you. You guys are at a right place and you Thank have you made so it much. through this selection. Thank you so much. And yeah, definitely the kind of things Saad has talked about, that effectuation theory and the bird in hand and the pilot in plane things. So these are actually the things that you guys actually need to learn at the moment. And these things are going to help you a lot through your entrepreneurial journey. So when we talk about lean startup methodology, so it is very much inspired from what Saad was talking about, the effectuation theory.
So the factuation theory actually says that you have to focus on what you already have, right? And you have to build something out of that, right? On the other hand, we have causation, where we are more focused towards the creating the cause and creating the initial capital being required, creating the initial $20 million investment you might need to start your venture. But in effectuation, we are not really focused on those things. We are focusing on what we already have. So lean startup methodology being the term being tossed in 2010 by Mr. Eric, who is an academician and as well as a serial entrepreneur from Silicon Valley, USA. So he tossed this term and he said that, okay, fine, startups can do wonders in a lean manner. So lean in Urdu, I guess most of our audience definitely know Urdu, and going forward I'll be talking in Urdu to keeping it very light. कि उर्दू में जब हम बात करते हैं तो हम लीन मीन्स पतला, मतलब कि वो इंसान जो ज़रा चुस्त है, तेज़ है, पतला है और जो बड़ी जल्दी से मूव कर सकता है. ही इज़ वेरी एजाइल इन हिज नेचर, कि उसके लिए मूव करना आसान है. तो ये टर्म टॉस की गई 2010 में, और आफ्टर दैट इट बिकेम अ बज़. वन वाज ओके, आई एम गोना लीन स्टार्टअप, गोना डू अ लीन स्टार्टअप. And then जो हमारे big corporates हैं, they were in a thinking process कि okay fine, so this way startups are gonna take over, so what we will do. So lean startup methodology, what they said okay fine, if you have launched a product, still you can launch new products by adopting lean startup methodology. So innovation can come from within existing network as well. So when we talk about innovation, so there are different kinds of innovation. There is process innovation, product innovation, and there is hierarchical innovation. So product innovation is when you launch some new product. What is a new product? A new product is something जो कि आप maybe उस region में new launch कर रहे हो, maybe वो आपकी company में new launch हो रही हो, आपकी company ने उससे पहले उसको launch नहीं किया हो. So still this is innovation. What is process innovation? कि आप एक काम जिस तरह पहले करते थे अब आप उस तरह से नहीं कर रहे, आप उसको किसी बेहतर अंदाज में कर रहे हैं. प्रोसेस इनोवेशन की हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल है HRM. सो HRM यूज्ड टू बी measured in terms of कि कितने लोग आए, कितने लोगों ने अप्लाई किया, कितने CV शॉर्टलिस्ट हुए, फिर HR ने कितनी खपत की, कितने वर्किंग आवर्स लगाए. बट नाउ HRM इज इंटायरली डिफरेंट. अब HRM का पूरा सिस्टम चला गया ऑनलाइन. डिफरेंट सॉफ्टवेयर जिसको मैनेज कर रहे हैं. आपके जो कन्वेंशनल HR की नीड है वो काफी हद तक खत्म हो गई है. देयर आर लॉट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज जिनका HR डिपार्टमेंट होता ही नहीं है. दे आर जस्ट यूजिंग सम HRM सिस्टम. सो दिस इज प्रोसेस इनोवेशन, कि एक चीज जो पहले एक मुश्किल अंदाज में होती थी, नाउ यू आर डूइंग इट इन एन इजी वे. सो बेटर, फास्टर, चीपर अप्रोच. स्टार्टअप्स मस्ट नो अबाउट दैट अप्रोच, कि स्टार्टअप्स में आप दो तरह के अप्रोचेस लेके चल रहे होते हैं. या तो आप कुछ डिसरप्ट कर रहे होते हैं या बेटर, फास्टर, चीपर कर रहे होते हैं एक चीज़ को. सो प्रोसेस इनोवेशन मोस्टली बेटर, फास्टर, चीपर अप्रोच पे चलती है. इट्स नॉट वर्किंग ऑन डिसरप्शन, क्योंकि किसी भी प्रोसेस को डिसरप्ट करना वो एक बड़ा दिल गुर्दे का काम है और नॉर्मली ऐसा नहीं किया जाता. और थर्ड चीज़ जो आप इनोवेशन में कर सकते हैं, दैट इज़ हायरार्किकल इनोवेशन. कि अगर आपने कोई ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करवा दी है कि आपकी कंपनी में आपकी जो टॉप मैनेजमेंट है हायरार्की में, उन तक एक्सेस भी अगर ईजी हो गई है, सो स्टिल दिस इज इनोवेशन. तो इस तरह की इनोवेशन पे जब बात हुई, तो व्हाट एरिक डिड, हु इंट्रोड्यूस द टर्म ऑफ लीन स्टार्टअप, एरिक सेड ओके फाइन, जो बिग कॉर्पोरेट्स हैं still they can innovate, they can introduce product innovation or they can introduce hierarchical innovation. और उस एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एज अ लीन प्रोजेक्ट लॉन्च करके वो लीन मेथोडोलॉजी स्टिल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसके अच्छे रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं. सो व्हेन एरिक डिड दिस थिंग, तो फिर इसको एक बहुत वार्म वेलकम मिला पूरी इंडस्ट्री में, क्योंकि इससे पहले दिस वाज समथिंग वेरी लिमिटेड टू स्टार्टअप्स ओनली, कि नहीं जी एक चीज़ जो आज से पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, आपने लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी के जरिए से ही उसको लॉन्च करना है, सो दिस इज समथिंग लीन. नो, इन 2016 बट एरिक क्लैरिफाइड कि नहीं, आप ऑलरेडी भी एक एग्जिस्टिंग कंपनी है, आपने कोई भी नया प्रोसेस लॉन्च करना है, नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, कोई नई रेंज लॉन्च करनी है, नई ब्रांच लॉन्च करनी है, सो स्टिल यू कैन अडॉप्ट दिस मेथोडोलॉजी. अब ये मेथोडोलॉजी क्या है, क्या कहती है, कुछ किताबी सी बातें हैं और देन इसके 5 मजेदार से प्रिंसिपल्स हैं. So the first thing the lean startup methodology talks about, it is eliminating uncertainty.
एक स्टार्टअप की जिंदगी का जो सबसे बड़ा जहर कातिल होता है दैट इज अनसर्टेनिटी। और स्टार्टअप शायद पैदा ही इसलिए होता है कि चीजें बड़ी अनसर्टन होती हैं, लोगों को समझ ही नहीं आ रही होती क्या करना है, और वहां स्टार्टअप आ जाता है एक सुपरमैन के तौर पे या सुपर वुमेन के तौर पे कि जनाब मैं हल करूंगा इस चीज को। सो लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी टॉक्स अबाउट कि हमने अनसर्टेनिटी को एलिमिनेट करना है या एटलीस्ट मिनिमाइज करना है, ठीक है जी। और जो आपके मैनेजमेंट प्रोसेसेस हैं उनको इस तरह से टेलर करना है कि वो स्टार्टअप्स के साथ फिट इन कर जाए, क्योंकि हमारे मोस्टली मैनेजमेंट प्रोसेसेस जो हैं वो कॉर्पोरेट्स के लिए डिजाइन किए गए हैं। और हम अक्सर जब स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हम इन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कॉर्पोरेट तो ऐसे करता है तो हम भी वैसे ही करेंगे, हम भी एक सीईओ बनाएंगे, एक सीटीओ बनाएंगे, सीएमओ बनाएंगे, सीएफओ सीडब्ल्यू बनाएंगे और घूमने वाली कुर्सी पे बैठ के गोल गोल घूमेंगे और स्टार्टअप चल जाएगा। दिस मे वर्क अ कॉर्पोरेट कंपनी लाइक for 2 or 3 decades, but this is not going to work for a startup. So first thing to do is to eliminate that sort of uncertainty कि आपको करना क्या है और आपको करना किस तरह से है, कितने लोगों के साथ करना है। काफी ब्रॉड टॉपिक है ये eliminating certainty uncertainty. I'm not gonna take long on this. इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों के सोच विचार की सलाहियत पे भी छोड़ता हूँ। And you can always go to the website that is theleans.com/principles where all these principles are already listed. I can also paste the URL over here so you guys can check by yourself as well. First thing is eliminating uncertainty. The second thing is it says work smarter not harder. हमें ये लगता है, हम लोग जब नया नया स्टार्टअप शुरू करते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि जी हार्ड वर्क होना चाहिए जनाब, जितना आप हार्ड वर्किंग होंगे, आप कि जो नॉर्मल लोग हैं वो तो 9 to 5 काम करते हैं, लेकिन स्टार्टअप तो वो होता है जो 24/7 काम करता है। यही किस्से सुन सुन के बड़े हुए हैं हम, ठीक है जी। पता नहीं जितने भी बड़े हुए हैं, अभी हमको बहुत ज्यादा बड़े तो नहीं हो गए, लेकिन जितने भी हुए हैं यही किस्से सुन सुन के बड़े हुए हैं कि जी स्टार्टअप तो 24/7 काम करता है। सो मीन्स वी आर एसोसिएटिंग समथिंग दैट इज कॉल्ड हार्ड वर्क with being entrepreneur or with being a startup founder. That's not the case, to be very precise. As an entrepreneur, as a startup founder, you need to work smart. Okay, fine, hard work do have an important role, but you need to play smart. आप सिर्फ हार्ड वर्क किए जा रहे हैं, दिस इज नॉट गोना हेल्प यू। आप हार्ड वर्क किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, किस काम के लिए कर रहे हैं, आप उसको मेजर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। दैट नेक्स्ट पॉइंट कि जब आप बात करते हैं कि वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर, तो देन अगली बात आती है कि आप जो इतना हार्ड वर्क कर भी रहे हैं इसको किसी ने वैलिडेट किया? क्या आपने खुद से वैलिडेट किया कि मैंने जितना भी हार्ड वर्क किया इसका क्या इम्पैक्ट क्रिएट हुआ? इम्पैक्ट कैन बी एनीथिंग। अब मुझे आइडिया नहीं है आप लोगों के स्टार्टअप्स क्या हैं, तो आप लोगों के स्टार्टअप्स ये भी हो सकते हैं कि आप में से किसी का स्टार्टअप ये हो कि मैंने लोगों की जिंदगी में एक मुस्बत तब्दीली लेके आनी है, इम्पैक्ट क्रिएट करना है, लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना है। सो दैट कैन बी योर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप। जैसे कि देन फाउंडेशन है, देन फाउंडेशन इज हेल्पिंग पुअर्स थ्रू एजुकेशन, सो दैट्स अ गोल, दैट्स अ वेरी नोबल गोल, वेरी नोबल कॉज, और ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का स्टार्टअप है, दैट्स फाइन। इसी तरह से किसी स्टार्टअप का गोल हो सकता है कि नहीं जी मैंने $100 मिलियन रेवेन्यू बनाना, फाइन, दैट्स अ स्टार्टअप। किसी स्टार्टअप का गोल ये हो सकता है कि मैंने एकेडेमिया इंडस्ट्री लिंकेजेस करने हैं और मैंने इतने ज़्यादा करने हैं कि पाकिस्तान की जो 300 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से 200 को मैंने ऑनबोर्ड कर लेना है, फाइन, दैट्स योर स्टार्टअप, दैट्स योर गोल। तो इस तरह के जो आप अपने KPI सेट करेंगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, उनको मेजर कौन कर रहा है? इन मोस्ट ऑफ द केसेस जब आप स्टार्टअप बनाते हैं, और स्पेशली इन केस ऑफ प्रोडक्ट सेंट्रिक स्टार्टअप्स के जिसमें एक प्रोडक्ट होती है जिसको एक एंड कस्टमर ने यूज करना होता है, दैट प्रोडक्ट कैन बी अ टेक्निकल प्रोडक्ट और अ नॉन टेक्निकल प्रोडक्ट। वो एक फिजिकल टेंजिबल प्रोडक्ट भी हो सकता है, मे बी आप में से कोई शैम्पू बनाने का काम कर रहा हो, दैट्स अ स्टार्टअप। शैम्पू बनाने का काम भी एक स्टार्टअप है। और हो सकता है कि कोई शैम्पू बेचने की वेबसाइट बना रहा हो, फैशन एक्सेसरीज बेचने की, सो दैट्स अ स्टार्टअप एज वेल। तो वट एवर स्टार्टअप यू आर गोना डू, उसको आप एवेल्युएट कैसे करेंगे? वो वैल्यूएशन मैकेनिज्म डिफाइन करना बहुत जरूरी है डे 1 पे। तो लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी में एरिक साहब क्या कह रहे हैं? एरिक साहब ये कह रहे हैं कि बिल्ड एन MVP एज अर्ली एज पॉसिबल। क्या आप एक MVP बनाएं, आप जो भी कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट है चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट है, उसका एक MVP बनाएं और उसको अपने कस्टमर के सामने फेंक दें, और कस्टमर उसका जो बुरा हाल करता है वो ऑब्जर्व करें। दिस इज वेयर यू आर गोना गेट एक्चुअल रिजल्ट्स के हुआ क्या भाई। तो आपका जो एवेल्युएशन है इन केस ऑफ लीन स्टार्टअप मेथड,
ये आप खुद नहीं करते, ये मार्केट करती है, ये कस्टमर करता है, एंड यूजर करता है, और आप उसके आगे अपना एमवीपी रख देते हैं। अच्छा, अब इसके साथ एक और चीज जो इनहेरिट है, जो कि कहीं नहीं गई लेकिन दैट इज देयर, कि इफ यू हैव टू फेल, फेल अर्ली। क्योंकि फैक्ट ये है कि हमारे तकरीबन हार्वर्ड की जो लेटेस्ट केस स्टडी के हिसाब से 75% स्टार्टअप्स फेल होते हैं। दैट्स अ फैक्ट। वैसे तो होते से ज्यादा है, लेकिन हार्वर्ड वालों ने चले हाथ थोड़ा हल्का रखा है, जैसे कि 75% स्टार्टअप्स फेल होते हैं। सो बहुत बड़ी परसेंटेज है ये, ठीक है जी। मतलब आप कह सकते हैं कि 3/4 स्टार्टअप्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं, इतनी बड़ी परसेंटेज है। तो अगर इफ यू हैव टू फेल, इफ यू आर देयर टू फेल, तो भी फेल अर्ली ना, ताकि उसके बाद आप एटलीस्ट पिवट कर सकें, जिंदगी में कोई और अच्छा काम कर सकें। हो सकता है आपका स्टार्टअप नहीं चला, आप हायर एजुकेशन की तरफ चले जाएं। हो सकता है आपका स्टार्टअप अच्छा नहीं चला, आप एकेडमिया ज्वाइन कर लें, मे बी आप कोई जॉब कर लें, मे बी आप कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन कर लें, टीचिंग कर लें, कोई और काम धंधा कर लें, या स्टार्टअप में ही पिवट कर लें। बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं, उनका पहला आइडिया नहीं चलता, फिर वो पिवट करते हैं, दूसरे आइडिया के साथ रीबाउंस करते हैं, कहते हैं ठीक है पहला नहीं चला, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो हमने चीज़ें लर्न करनी है, जो तजर्बा हमारा बन गया, वो तो नहीं जाया गया ना। तो उसको यूटिलाइज करते हुए कोई नया प्रोडक्ट, नया आइडिया ले आते हैं और उसके साथ करते हैं। तो मीनवाइल थोड़ा सा मैं आपको पिवट के बारे में भी बताता चलूँ। पिवट हमारे यहाँ कन्फ्यूजन पाई जाती है कि आइडिया चेंज करने को पिवट कहते हैं। फाइन, यू कैन से दैट, लेकिन आइडिया चेंज करने की भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कि आपने आइडिया चेंज करना है, लेकिन इस तरह से करना है कि आपने अपना डोमेन शिफ्ट नहीं करना। आप जिस डोमेन में थे, रहना आपने उसी डोमेन में है, उसी डोमेन में रहते हुए आपने कोई वर्क अराउंड इस तरह का निकालना है कि इट मे साउंड लाइक अ न्यू स्टार्टअप आइडिया, बट इट शुड बी अ सॉर्ट ऑफ अ स्पिन ऑफ ऑफ दैट पर्टिकुलर आइडिया अगेन। ठीक है, तो उसी का ही कोई नया यूज केस हो सकता है। तो प्राइमरीली पिवट का जब आइडिया आया था तो वो ये था, लेकिन अब ठीक है, हमारे स्टार्टअप्स ने इस आइडिया के साथ काफी अजीब सा सलूक कर दिए। अब होता ही है कि एक स्टार्टअप जो ग्रोसरीज बेच रहा था, अब वो एकदम से ग्रोसरीज नहीं बेचता, वो रियल स्टेट में आ जाता है, वो कहता है कि जी मैंने पिवट किया है। सो दिस इज नॉट एग्जैक्टली पिवटिंग, बट ओके फाइन। कुछ चीज़ें गलतुलाम हो जाती हैं, और फिर जब वो गलतुलाम हो जाती हैं तो उन्हें गलत नहीं कहा जाता, उन्हें एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी के जो बैक पे एक चीज है, जो बैक ऑफ माइंड भी उस टाइम एरिक के ज़हन में भी चल रहा होगा, दैट इज द फिनोमिना कि इफ यू हैव टू फेल, फेल अर्ली। बजाय कि आप 6 साल उस चीज पे काम करते रहें, आप पूरा जिन तैयार कर लें, पूरा प्रोडक्ट रेडी कर लें, और फिर आपको पता चले कि जी ये तो चलना ही नहीं है, ये तो किसी एक सिंगल बंदे ने भी यूज नहीं करना। तो आप उसका एमवीपी बनाएं, उसको कस्टमर के सामने रखें, और कस्टमर ने उसके साथ जो भी बुरा असर करना है उसको करने दें, और उसके अगेंस्ट आपको समझ आ जाएगी कि आइदर इट्स गोना वर्क और नॉट। और कस्टमर आपका मुफ्त में क्यूए भी कर देगा, क्योंकि हमारे खास तौर पे पाकिस्तानी माशरे में जो कस्टमर्स हैं, ये तो कीड़े निकालते हैं हर चीज़ में से। यार ये ठीक नहीं चल रहा, यार ये आपकी वेबसाइट पे मसला आ रहा है, यार आपके फेसबुक पेज पे ना वो जल्दी से मैसेज का जवाब नहीं देते, यार आप क्या अजीबोगरीब सी पोस्टें डालते रहते हैं फेसबुक पेज पे। सो आप लोगों में से कुछ लोग जिनके कैमराज ऑन है, मुझे स्माइल करते भी नजर आ रहे हैं, दैट सिंपली मीन्स कि आपको इस तरह के फीडबैक्स मिले हैं। तो ये पाकिस्तानी इकोसिस्टम के साथ एक चीज़ इनहेरिट है कि फ्री में क्यूए तो ये कर देते हैं आपका। इन लोगों की बातों पे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको इनका थैंक यू कहना चाहिए। ये मुफ्त में आपका क्यूए करके दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ आप ठीक नहीं कर रहे थे और ये आपसे क्या चाहते हैं। तो अगर ये आपके कस्टमर्स में कन्वर्ट होते हैं तो डेफिनेटली कस्टमर फीडबैक मैटर्स। ठीक है जी। तो एमवीपी बिल्ड करना है आप लोगों ने जल्द से जल्द, जो भी कर रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल चीज़ है, चाहे वो कोई फिजिकल चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि आपने जो भी चीज़ लर्न की है, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, उनको आपने वैलिडेट भी करना है। और एमवीपी होगा तो वैलिडेट करेंगे, बेसिकली कस्टमर वैलिडेशन है ये। अगर आप इसको डिटेल से पढ़ते हैं, वैसे ज़्यादा किताबें तो नहीं पढ़ते हमारे आजकल के एंटरप्रेन्योर्स, पुराने वाले जो सही वाले एंटरप्रेन्योर्स थे वो पढ़ते होते थे। आजकल काफ़ी फार्मी किस्म के एंटरप्रेन्योर्स भी आए हुए हैं। साथ मैं देख रहा हूँ आपकी स्माइल। तो अच्छा जी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमवीपी? एमवीपी इज मिनिमल वायबल प्रोडक्ट के मिनिमम आपका जो वर्जन है किसी भी प्रोडक्ट का, बहुत कम फीचर्स के साथ, बहुत कोई शशके नहीं डालने उसमें, आपने कोई बहुत फुल फ्लैज प्रोडक्ट नहीं बिल्ड करना, लेकिन एटलीस्ट इतना हो कि यूजर उसके साथ इंटरेक्ट कर सके और यूजर को समझ आ जाए कि आप क्या डिलीवर करना चाह रहे हैं। तो दैट इज योर एमवीपी। तो उसमें चीज़ें, एलिमेंट्स तकरीबन पूरे ही होते हैं, लेकिन पूरा बिल्डिंग स्ट्रक्चर नहीं होता। जस्ट लाइक एक बिल्डिंग बनाने से पहले उसका नक्शा बनाया जाता है ना पूरा,
या बिल्डिंग जब बनना शुरू होती है तो उसका एक स्केलेटन बनता है, पहले ढांचा सा बनता है, तो दैट इज योर एमवीपी। ठीक है जी। अब एमवीपी में भी कुछ लोग गलती करते हैं। एमवीपी इज नॉट समथिंग कि आपने 10 मंजिला बिल्डिंग बनानी है और आप पूरी एक वेल फर्निश्ड एक मंजिल बना के कहें दिस इज माय एमवीपी। नो, इट्स नॉट। 10 मंजिला का ही स्केलेटन जो है, जो उसका स्ट्रक्चर है, दैट इज योर एमवीपी। नॉट अ वेल फर्निश्ड सिंगल फ्लोर इज योर एमवीपी। फाइन। तो ये चूंकि क्वेश्चन आया था, मैंने यहाँ पे इसको आंसर कर दिया। और इससे पहले हम बात कर रहे थे कि आजकल के एंटरप्रेन्योर्स किताबें नहीं पढ़ रहे, और पहले वाले तो पढ़ते होते थे। तो अगर इसको आप पढ़ें तो ये वैलिडेटिंग लर्निंग वाली जो चीज़ है, इसकी बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी आपको, लेकिन इसमें एंड रिजल्ट आपको यही मिलेगा कि वैलिडेट करना है आपके कस्टमर को। आपके फ्रेंड्स क्या कहते हैं, आपकी फैमिली क्या कहती है, आपके प्रोफेसर्स क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। आपका कस्टमर क्या कहता है, ये चीज़ मैटर करती है। क्योंकि प्रोफेसर साहब ने आपकी प्रोडक्ट के लिए पे नहीं करना। वो अगर आपको कहते हैं ना, शाबाश अमन बहुत अच्छा स्टार्टअप है तुम्हारा, निमरा बहुत अच्छा स्टार्टअप है तुम्हारा, तो कहने दे उन्हें। अनलेस अंटिल जब तक वो आपको पे नहीं कर रहे, वो आपके कस्टमर नहीं है, यू डोंट नीड टू बॉदर। उनका फीडबैक मैटर करता होगा एक सर्टेन लिमिट तक, लेकिन उतना मैटर नहीं करता जितना एक कस्टमर का फीडबैक मैटर करता है। तो ये कुछ चीज़ें जो थोड़ी सी ज़रा थ्योरी है अबाउट लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी। और उसके बाद इसने आपको दिए हैं 5 अदद प्रिंसिपल्स। अब उन 5 प्रिंसिपल्स में जो पहली बात है, इवन लाइक वी कैन टॉक दिस पर्टिकुलर फॉर लाइक आवर्स एंड आवर्स, और इसमें तो इसको इंटरेक्टिव रखें, खास तौर पे इस वाले पॉइंट को। ये जिन सारी आवाम के माइक बंद हैं, ये आई वुड लाइक के दरमियान में थोड़ी देर के लिए अनम्यूट हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि एंटरप्रेन्योर्स आर एवरीवेयर। तो इस बात को जरा दिमाग की खिड़कियां खोल के समझें और सुने कि एंटरप्रेन्योर्स आर एवरीवेयर। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि हमने जो एंटरप्रेन्योर्स का एक टिपिकल सा एक इमेज बनाया होगा ना, यार ये तो बड़े किसी ना नर्ड किस्म के लोग होते हैं, या ये गीक्स होते हैं, या ये हमेशा गैरेज में ही बैठते हैं। अगर मेरे घर में गैरेज नहीं है तो मैं एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, या अगर मैं किसी कोवर्किंग स्पेस में नहीं जा रहा तो मैं एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, या मैंने आईबीए की सर्टिफिकेशन नहीं की तो मैं एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। ऐसा कोई मसला नहीं पाया जाता। आप आईबीए वालों से पूछ के देखें, आईबीए वाले आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस आपने एमबीए नहीं किया। दिस एक्चुअली हैपेंस, राइट? तो दे विल कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने यहाँ से एमबीए नहीं किया, आपने इतने सारे पैसे ज़ाया नहीं किए। Exactly. एंटरप्रेन्योर्स आर एवरीवेयर। साद इज एन एंटरप्रेन्योर, आमिद इज एन एंटरप्रेन्योर, अमन इज एन एंटरप्रेन्योर, मिशाल, निमरा, ज़बाइश, सो ऑल ऑफ अस आर एंटरप्रेन्योर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स आर एवरीवेयर। लाइक इसको समझें थोड़ा सा कि आप जब फल खरीदने जाते हैं तो वो जो ठेले पे फल बेच रहा होता है, रेडी पे फल बेच रहा होता है, या स्टोर में फल बेच रहा होता है, वो भी एक एंटरप्रेन्योर है। उसने क्या एंटरप्रेन्योरशिप लगाई है? उसने एंटरप्रेन्योरशिप लगाई है कि यार भाई आई नीड अ फुल फ्लेज शॉप टू जस्ट सेल एप्पल्स और बनानास। मैं इसको घूम फिर के भी तो बेच सकता हूँ। अब ये उसकी प्रोसेस इनोवेशन है। उसने प्रोसेस इनोवेट कर दिया कि यू डोंट नीड टू गो टू शॉप, आई विल कम टू योर हाउस। मैं आपके घर के बाहर आके आवाज लगाऊंगा कि सेब ले लो 100 रुपए किलो, और आप बस घर से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे और आप 100 रुपया पकड़ाएंगे और सेब ले लेंगे। सो उसने ये प्रोसेस इनोवेट की है। ही इज एन एंटरप्रेन्योर। वी नीड टू लर्न फ्रॉम व्हाट ही इज डूइंग। तो ये हमें हर जगह मिलेंगे। एक डायमेंशन तो इसकी ये है कि ये जो दिमाग में ताला लगा हुआ है ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास है जो एंटरप्रेन्योर होती है, इसको थोड़ा खोलें। हर एक एंटरप्रेन्योर है। जो भी कोई प्रोसेस इनोवेट कर रहा है, कोई प्रोडक्ट इनोवेट कर रहा है, कोई हायरार्की इनोवेट कर रहा है, ही और शी इज एन एंटरप्रेन्योर। अच्छा, इससे आपको दूसरी चीज क्या हेल्प करेगी? दूसरी चीज आपको ये हेल्प करेगी कि व्हेन एंटरप्रेन्योर्स आर एवरीवेयर, सो व्हाई नॉट आई एम नेटवर्किंग। मैं उनसे बात क्यों नहीं कर रहा, मैं उनसे मिल क्यों नहीं रहा, मैं उनके साथ अपना आइडिया क्यों नहीं डिस्कस कर रहा? हो सकता है कि वो मेरे आइडिया को रिफाइन कर दें, हो सकता है कि वो मुझे बताएं कि नहीं भैया आप जिस तरह कर रहे हो ना, इस तरह तो 6 साल लग जाएंगे, इस तरह करो, इस तरह 1 साल में हो जाएगा। तो व्हेन एंटरप्रेन्योर्स आर एवरीवेयर, तो इसका आसान मतलब ये है कि आपको बहुत सारे सीनियर्स और बहुत सारे जूनियर्स भी मिलेंगे। अगर साद का एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपीरियंस 6 साल का है, तो साद को ऐसे एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे जिनका 12 साल का एक्सपीरियंस होगा, और साद को ऐसे एंटरप्रेन्योर्स भी मिलेंगे जिन्होंने भी नया नया शुरू किया होगा। लेकिन ये कब होगा कि जब आप ये दिमाग में ये वाला चश्मा दिमाग आंखों के आगे लगाएंगे कि एंटरप्रेन्योर्स आर एवरीवेयर, तभी मिलेंगे। अगर तो आप सिर्फ उस पर्टिकुलर क्लास को ही एंटरप्रेन्योर समझते हैं तो वो तो ही 10-12 लोग होते हैं, वहाँ तो मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल।
इस पर्टिकुलर पॉइंट के साथ इनहेरेंट और बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन इन सेशंस वेयर आई टॉक अबाउट दिस मेथोडोलॉजी, तो हम जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे भी राय लेते हैं बताने से पहले कि आपने ये पॉइंट सुना, आपके जहन में क्या आया। तो मुझे याद है एक जगह पे फिजिकल सेशन हो रहा था, तो वहाँ पे हमारे एक पंजाबी भाई बैठे हुए थे, तो उनसे मैंने पूछा, मैं कहा जी एंटरप्रेन्योर्स आर एवरीवेयर, ये बात सुन के आपको क्या समझ आई है। तो उन्होंने कहा कि पंजाबी अगर आप लोगों को नहीं आती, मैं उर्दू में बाद में ट्रांसलेट कर दूंगा। सो ही सेड, सर जी इंदा मतलब है कि इट चुको थलो एंटरप्रेन्योर निकल आंदा, यानी कि आप कहीं से भी कोई ईंट भी उठाएं तो नीचे से एक एंटरप्रेन्योर निकल आता है। उन्हें इस जुमले से ये समझ आई कि दे आर इन अबंडेंस, ये इतने ज्यादा हैं कि कहीं से भी निकल आता है। तो जब ये वाला माइंडसेट होगा तो डेफिनेटली आपका नेटवर्क इंक्रीज हो गया। अब आप फल वाले के साथ भी नेटवर्क करेंगे, अब आप सब्जी वाले के साथ भी नेटवर्क करेंगे, अब आप महल्ले की परचून की दुकान वाले के साथ भी नेटवर्क करेंगे, आप एकेडेमिया के साथ भी नेटवर्क करेंगे, आप इंडस्ट्री के साथ भी नेटवर्क करेंगे। आपका होराइजन ब्रॉड हो गया, दिमाग खुल गया आपका कि भाई एंटरप्रेन्योर्स आर। अच्छा, ये पार्टिसिपेंट ने इसी की एक और डाइवर्जन दी, वो कहते हैं कि जी एंटरप्रेन्योर्स आर एवरीवेयर का मतलब है कि हमारे दिमाग में ये जो एक मसला पाया जाता है कि जी एंटरप्रेन्योर सिर्फ सिलिकॉन वैली में होते हैं। नो, दे आर एवरीवेयर। They are in India, they are in Pakistan, they are in Bangladesh, they are like everywhere. So that's an opinion, I respect that opinion. तो ये सारी चीजें, इस जुमले का क्या क्या मतलब निकल सकता है, ये आपने जरा खुद भी इस पे वर्क करना है। Now we will move to next point, that is entrepreneurship is management. अब होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ये गलती करते हैं, हमें ये लगता है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई स्टार्टेड शारू टेक्नोलॉजीज, सो शारू टेक्नोलॉजीज वाज देयर टू रीशेप इवेंट इंडस्ट्री। तो हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च करना था जिसने एक वेब पोर्टल था जिसने इवेंट इंडस्ट्री को रीशेप करना था, उसने डिफरेंट इवेंट वेंडर्स को ऑनबोर्ड करना था, यू नो ऑल दोज थिंग्स। लेकिन ये तो हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा स्टार्टअप नहीं है। स्टार्टअप इज एन ऑर्गेनाइजेशन, योर प्रोडक्ट इज नॉट योर स्टार्टअप। ये क्लियर कर लें आज, मतलब बड़ी ये अखीर किस्म की कन्फ्यूजन पाई जाती है लोगों के दिमाग में कि उनसे पूछते हैं कि और भाई क्या स्टार्टअप है आपका, वो कहते हैं हाँ जी जी हम नलके बनाते हैं। नलके बनाना इज नॉट योर स्टार्टअप। साथ को समझ आ रही है नलके कौन बनाता है? ठीक हो गया। तो नलके बनाना इज नॉट योर स्टार्टअप, योर ऑर्गेनाइजेशन इज योर स्टार्टअप। उसमें आपकी टीम है, आपके मैनेजमेंट प्रोसेसेस हैं, आपकी हायरार्की है, आपका लोगों के साथ लेन देन है, आपकी कस्टमर सर्विस है, आपकी कस्टमर सपोर्ट है, आपका फीडबैक मैकेनिज्म है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो एंटरप्रेन्योरशिप को या स्टार्टअप को आपने मैनेजमेंट समझना है। जब आप इसको मैनेजमेंट समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, और जिस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक इंस्टीट्यूट को मैनेज करना पड़ता है, इस तरह से इसको भी मैनेज करना पड़ता है। पूरा एचआर मैनेज करना पड़ता है, पूरा पेरोल मैनेज करना पड़ता है, हर चीज देखनी पड़ती है। तो अगर तो आप इसको सिर्फ प्रोडक्ट लेके चलते रहेंगे तो प्रोडक्ट में तो सिंपल ये है कि लो जी मैं ब्यूटी क्रीम बेचती हूँ और आज मेरी 20 क्रीमें बिक गई, आई एम हैप्पी। 20 क्रीमें तो बिक गई, आपके स्टार्टअप से एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को मिली है, आपके स्टार्टअप ने एम्पावर कितने लोगों को किया है। इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल गोल होते हैं, वो तो नहीं आपने अचीव किए। तो एंटरप्रेन्योरशिप को आपने मैनेजमेंट के तौर पे लेके चलना है डे वन से। हमारे यहाँ अक्सर मसला पाया जाता है कि नहीं अभी तो हम स्टार्टअप हैं, जब हम मैच्योर हो जाएंगे ना तब हम ये वाली चीजें करेंगे। तो इवन लीन स्टार्टअप जो कि ये कहता है कि सारी फालतू चीजें निकाल दें, वो भी ये कह रहा है कि पॉइंट 2 पे आपने इसको मैनेजमेंट समझ के चलना है। चाहे आप सिंगल फाउंडर कंपनी है, आप में से काफी लोग स्टार्टअप्स ऐसे होंगे कि जो सिंगल फाउंडर होंगे, उनके साथ इवन को फाउंडर भी नहीं होगा अभी तक। तो आपने उसको भी बड़े मैनेज्ड वे में लेकर चलना है। आपकी एक फुल फ्लैज ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके जो भी एचआर भी आप हैं, उसके सीईओ भी आप हैं, उसके सीटीओ भी आप हैं। वैसे इफ वी से सीईओ तो इट मींस चीफ एवरीथिंग ऑफिसर, सारा कुछ ही कवर हो जाता है उसमें इन केस ऑफ स्टार्टअप। जब आप सिंगल फाउंडर कंपनी होते हैं तो आपके सीईओ का मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं होता, चीफ एवरीथिंग ऑफिसर होता है। वो कवर तो हो रहा है, लेकिन आपने मैनेजमेंट को लेके चलना है साथ साथ, राइट। तीसरी चीज़ जो हमने अभी ऊपर भी बात की कि आपने फिर वो जो मैनेजमेंट को साथ साथ लेके चलना है, फिर आपने अपनी लर्निंग को वैलिडेट भी करना है। और इसमें जो उसने अंग्रेजी लिखी है बड़ी अच्छी लिखी है, व्हेन आई वुड लव टू रीड इट। स्टार्टअप्स एग्जिस्ट नॉट टू मेक स्टफ, मेक मनी और सर्व कस्टमर्स, दे एग्जिस्ट टू लर्न हाउ टू बिल्ड सस्टेनेबल बिजनेस। तो बहुत ही खूबसूरत बात कर दी है भाई साहब ने। भाई साहब कह रहे हैं कि सिर्फ प्रोडक्ट बेचना, कस्टमर्स को सर्व करना या पैसे बनाना, ये आपका स्टार्टअप नहीं है।
आपका स्टार्टअप ये है कि आपने एक मॉडल है कि ये काम इस तरह भी हो सकता है, ये बेटर वे है इस काम को करने का, दैट इज योर मॉडल. सो दैट मॉडल इज एक्चुअली योर स्टार्टअप, नॉट दैट प्रोडक्ट इज योर स्टार्टअप. मैंने भी जैसे कुछ एरो टेक्नोलॉजीज का बताया, तो वो जो वेब पोर्टल है जो इवेंट्स करवाता है, दैट इज नॉट माई स्टार्टअप. द ऑर्गेनाइजेशन दैट आई हैव बिल्ड इज माई स्टार्टअप. उसकी कुछ वैल्यूज हैं, उसकी एक ब्रांड वैल्यू है, उसकी एक टीम है, राइट. तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि जब आप ये सारी चीजें साथ लेके चलते हैं तो फैंसी टर्म्स में तो सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन फिर आपने उसको वैलिडेट भी करना है. और ये ऊपर वाला सारा डिस्क्लेमर उसने इसलिए दिया कि वैलिडेट ऐसे नहीं करना कि कितने यूनिट बेचे और क्या किया और क्या नहीं किया. आपने उसको साइंटिफिकली वैलिडेट करना है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स रन करने हैं और चेक करना है कि आपके विजन का कितने परसेंट अचीव हुआ है इसमें से. ठीक है, स्टार्टअप्स की एक होती है ना विजन स्टेटमेंट होती है, एक मिशन स्टेटमेंट होती है. विजन स्टेटमेंट होता है आपका अल्टीमेट गोल, आपका लॉन्ग रन गोल, और मिशन स्टेटमेंट होता है आप एक शॉर्ट टर्म या एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन के लिए गोल सेट कर लेते हैं कि जी हमें ये टारगेट अचीव करना है. तो आपका जो आप वैलिडेशन कर रहे हैं वो अराउंड विजन मेजर होनी चाहिए कि विजन का कितने परसेंट अचीव हुआ. ठीक है, आप गोल्स अचीव कर रहे हैं, कस्टमर सर्व कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वैलिडेट इस तरह से नहीं करना. वैलिडेट करना है कि विजन का कितने परसेंट अचीव हुआ. सो मे बी आपके विजन का सिर्फ 2% अचीव हुआ हो, बट स्टिल इट्स एन अचीवमेंट. ठीक है, यू आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स योर गोल. उसके बाद आपने क्या करना है, अभी चूंकि हमने इनोवेशन पे बड़ी डिटेल्ड बात की, तो आप जो भी इनोवेशन कर रहा है आपका स्टार्टअप, आपने उसकी अकाउंटिंग भी करनी है. तो एक तो होती है ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम ये करते हैं कि जी कंपनी में कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, कितने डेबिट हुए, कितने क्रेडिट हुए, बैलेंस शीट कैसे बनेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेगी, फिस्कल ईयर जब क्लोज होगा तो क्या होगा, इस तरह की चीजें करते हैं ना हम अकाउंटिंग में. तो इनोवेशन अकाउंटिंग में आपने ये करना है कि आपकी जो एंटरप्रेन्योरल आउटकम्स हैं या जो आपके जो डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको आप कैसे अकाउंटेबल कर रहे हैं. तो उनको आप अकाउंटेबल करेंगे प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वर्क पे, कि आपकी जो टीम है, जो आपकी इनोवेशन है, उसके नतीजे में आपका जो काम है वो सही से प्रायोरिटाइज हो रहा है या नहीं हो रहा, या आपके मिलेस्टोन्स वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या अगर आपने कोई न्यू काइंड ऑफ अकाउंटिंग इंट्रोड्यूस कराई है तो वो आपके स्टार्टअप के लिहाज से चल रही है कि नहीं चल रही. इस तरह से आप उसको वैलिडेट करेंगे साथ में. और इसकी प्रॉपर जैसे अकाउंटिंग परफॉर्म होती है पैसों की, फाइनेंशियल्स की, आप इनोवेशन की भी अकाउंटिंग परफॉर्म करेंगे. ये बात थोड़ी सी बारीक थी, थोड़ी गहरी थी, लेकिन आई होप आप लोगों को समझ आई है कि जैसे हम पैसों की अकाउंटिंग परफॉर्म करते हैं, आपने इनोवेशन की भी अकाउंटिंग परफॉर्म करनी है. इनोवेशन की भी बैलेंस शीट बनानी है महीने के एंड पे, इतनी इनोवेशन आई, इतनी इनोवेशन गई, इतना डेबिट हुआ, इतना क्रेडिट हुआ, एंड नाउ वी आर एट दिस स्पेस. जी जुबाइश, यू हैव अ क्वेश्चन, यू कैन आस्क. ये वाला पॉइंट रिपीट कर दें प्लीज. सॉरी, ये पॉइंट रिपीट कर दें. कर दें जी. जी आपकी आवाज नहीं आ रही सही से. She's asking to repeat the point actually, Hamid bhai. ओके, लेट मी डू. Yes. अच्छा, इनोवेशन अकाउंटिंग में ये होता है कि जैसे हम अपने स्टार्टअप की फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं कि कितने पैसे आए स्टार्टअप में, कितने पैसे गए, क्या डेबिट हुआ, क्या क्रेडिट हुआ, फिर महीने के एंड पे हम लोग अक्सर एक बैलेंस शीट बनाते हैं. वो शीट हमें बताती है कि हमारा स्टार्टअप अभी फाइनेंशियली कहाँ खड़ा हुआ है. तो इसी तरह से एक सिमिलर पैटर्न पे आपने अपनी इनोवेशन अकाउंटिंग भी करनी है कि क्या इस महीने हमारे स्टार्टअप ने जो इनोवेशन लानी थी उसका कोई पोर्शन अचीव किया हमने. फॉर एग्जांपल हमने इनोवेशन लानी थी 100 यूनिट्स, तो क्या उसका 1% अचीव किया हमने. अगर या सिरे से जीरो पे रहे हम या नेगेटिव पे चले गए, इनोवेशन लानी थी लेकिन हम तो कॉर्पोरेट कल्चर का हिस्सा बन गए, तो ये आपने हर महीने के एंड पे इसकी अकाउंटिंग, इसका ऑडिट परफॉर्म करना है. ऑडिट होता है कि जब आप किसी भी चीज को कटहरे में ला के खड़ा कर देते हैं ना कि नहीं भैया तुम्हारा फैसला होगा कि तुम ठीक कर रहे हो या नहीं ठीक कर रहे. तो जैसे हम पैसों का फैसला करते हैं हर महीने के एंड पे या हर साल के एंड पे फिस्कल ईयर क्लोज करते हैं, इसी तरह से हमें एक इनोवेशन ईयर भी क्लोज करना चाहिए. इनोवेशन आई या नहीं आई, या जो पहले कमिट किया था वो भी आई या पहले से भी गए. ठीक है, so Zubaish, I guess now point is clear to you, and now we are moving to our last point, that is build, measure and learn. तो कुछ लोग होते हैं उनकी जिंदगी का मकसद होता है ईट, स्लीप, रिपीट.
मैं काफ़ी सियासी बातें कर रहा हूँ वैसे आज। तो एंटरप्रेन्योर्स की ज़िंदगी का मकसद ईट स्लीप रिपीट नहीं होता, उनकी ज़िंदगी का मकसद होता है कि उन्होंने कुछ बिल्ड करना होता है, फिर जो उन्होंने बिल्ड किया होता है उसको मेजर करते हैं और उस मेजरमेंट अकॉर्डिंगली वो लर्निंग करते हैं। तो फंडामेंटल एक्टिविटी जो है किसी भी स्टार्टअप की, वो उसकी प्रोडक्ट्स की फॉर्म में, उसके कस्टमर रिस्पॉन्सेज की फॉर्म में, और उसकी प्रेजेंस की फॉर्म में, और उसकी परसेवरेंस की फॉर्म में निकल के सामने आ रही होती है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी बेस पे आप उसको जज कर रहे होते हैं। जितनी ज़्यादा इस्तकामत पाई जाती है उस स्टार्टअप में, उतना वो अच्छा स्टार्टअप है। और ऐसा होता है जब आप इवन इन्वेस्टमेंट वगैरह रेज करने जाते हैं और आप बताते हैं कि जी हम 10 साल से ये काम कर रहे हैं, तो इन्वेस्टर बड़ी इज्जत की निगाह से देखता है आपको, कितनी इनमें इस्तकामत पाई जाती है कि 10 साल इन्होंने इस चीज़ के साथ गुजार दी हैं। फिर उसमें आपने जितनी नई नई चीज़ें लाए, आप इनोवेशन लाए, प्रोडक्ट लॉन्च किया आपने, आपको कस्टमर्स का जितना अच्छा फीडबैक आया है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और इन चीज़ों को मैयर करके फिर आप लर्निंग, ठीक है हमने एक प्रोडक्ट फेंका मार्केट में, उसको कस्टमर्स ने ये फीडबैक दिया, हमने उस फीडबैक को मैयर किया और उस मैयरमेंट के अगेंस्ट हमारी ये लर्निंग है। फॉर एग्जांपल एक स्टार्टअप है, वो ई कॉमर्स का स्टार्टअप है, उसने फैशन प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑनलाइन सेल करनी है। तो उसने एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई सादी सी वर्डप्रेस में, और उसने लॉन्च कर दिया। लॉन्च करके उसको कस्टमर के फीडबैक आए बहुत गंदे किस्म के। कस्टमर्स ने कहा कि आप तो टाइम पे चीज़ ही नहीं भेजते, आपकी तो प्रोडक्ट ही घटिया है, फलाना ढमकाना इस तरह। तो उसने क्या करना है, उसने इस पूरे रिस्पॉन्स को मैयर करना है, उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करना है और उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करना है कि कितने फीडबैक आए हैं क्या उनका। तो फर्स्ट पता लगा कि 10 लोगों ने नेगेटिव फीडबैक दिया। फिर आपने उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है कि ठीक है 10 लोगों ने दिया, लेकिन 10 लोगों ने कितनी बनाई है, क्या उन्होंने सिर्फ थम्स डाउन किया है या उन्होंने आपकी पूरी की पूरी इज्जत अफजाई फरमा दी है कि नहीं जी आप तो फारिग हैं। उसकी क्वालिटी भी चेक करनी है कि कितनी इज्जत अफजाई फरमाई गई है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों करने हैं। दैट इज योर मेजरमेंट ना। मेजरिंग यूनिट्स दो तरह के होते हैं, क्वालिटेटिव होते हैं या क्वांटिटेटिव होते हैं। तो ये दोनों तरह की मेजरमेंट करके उससे जो आपकी लर्निंग बनती है उसकी बेस पे या तो आपने पिवट करना है, या अगर आपको नजर आ रहा है कि नहीं अभी शुरू में ठीक है मसला है, अगर हम इस्तकामत दिखाएं थोड़ी, हम इस पर स्टिक करें तो ठीक हो जाएगा, तो फिर आपने परसेवरेंस दिखानी है। सो वट एवर द पाथ यू हैव टू टेक, आइदर यू हैव टू बी डूइंग पिवट या आपको इस्तकामत दिखानी है, ये फैसला आपने बिल्ड मैयर करने के बाद लेना। तो हम लोग करते क्या हैं मोस्टली स्टार्टअप, हम बिल्ड कर लेते हैं, चीज़ बिल्ड कर देते हैं, कस्टमर के सामने भी रख देते हैं, यूज़ करना भी शुरू करता है। हमें लगता है कि मैयर करना ना बड़ा बोरिंग और बड़ा टायरिंग सा प्रोसेस है, हम नहीं करते। कि इस वीक में हमारे फेसबुक पेज पे कितने न्यू लाइक्स आए, हमारे लिंक्डइन पे कितने न्यू फॉलोअर्स बने, हमारी वेबसाइट पे कितने न्यू विजिटर्स आए, कितने न्यू साइनअप्स हुए, कितने लोगों ने पे किया हमारी वेबसाइट के थ्रू, या अगर कोई फिजिकल प्रोडक्ट है कितने यूनिट सेल हुए। तो ये जो मेजरमेंट है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ये हमें एज एन एंटरप्रेन्योर मोस्ट ऑफ द टाइम बोरिंग लगती है, टायरिंग लगती है। बट व्हाट आई एम टेलिंग यू कि यही तो काम है भैया करने वाला सारा। बिल्ड तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, ये मेजरमेंट तो सारा काम है। ठीक है जी। तो हेयर आई वुड लाइक टू जस्ट कंक्लूड माय टॉक, और उसके बाद अगर जितना भी कुछ थोड़ा बहुत टाइम बचेगा हमारे पास वो हम क्वेश्चन आंसर लेंगे, और थोड़ा इंटरेक्टिव भी हो जाएगा। तो ये है जी लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी, जब मैंने आपको बताया कि ये 2010 में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी और 11 साल में इसने माशाल्लाह काफ़ी इवॉल्व कर लिया। मैं कोई एडवोकेट नहीं हूँ लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी का, नाम मुझे पैसे देते हैं ये लोग लेकिन ये एक अच्छी मेथोडोलॉजी है और इसने मुझे बहुत हेल्प किया मेरे स्टार्टअप को लॉन्च करने में और नए स्टार्टअप्स लॉन्च करने में भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह एट द मोमेंट आई एम रनिंग मोर देन 6 स्टार्टअप्स इन पैरेलल। तो वो सब इसी तरह ही मुमकिन हुआ क्योंकि लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी को ज़हन में रखा हुआ था। हमारा एक स्टार्टअप जो है वो इवेंट इंडस्ट्री में चल रहा है, एक प्रिंटिंग में चल रहा है, एक एग्रीकल्चर में चल रहा है, एक एजुकेशन में चल रहा है, एक साइंसेज में चल रहा है। तो इस तरह के जो मल्टीपल स्टार्टअप्स एक ही टाइम में रन कर रहे हैं, तो ये इस मेथोडोलॉजी की वजह से मुमकिन हुआ, जिसकी वजह से आई एम वेरी थैंकफुल टू लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी एंड आई हैव टोल्ड यू गाइज अबाउट दिस। So keep reading about this and keep building, keep measuring and keep learning. Thank you very much. House is open for questions. Thank you so much, Ahmed Bhai, for this great talk actually. So yes, we are open for the questions. You may raise hand for the questions one by one. Yes, Eza, you may ask. सर आपने बात की MVP लॉन्च करने की, ताकि हम अपना चेक कर सकें कि आइडिया उसकी वैलिडेशन की
और ये कि वो कितना काम करता है। तो MVP लॉन्च तक करने तक हमने काम क्या किया, टीम बिल्ड करी है और एक स्ट्रक्चर भी खड़ा कर दिया है। तो इसमें काफ़ी मेहनत होती है। तो अभी हम टीम बिल्ड नहीं की, 2 से 3 बंदे हैं और आधा स्टेज तक। तो इसी वक्त हम इस टेस्ट कर सकते हैं या आप हेल्प करें अगर हम फॉर एग्जाम्पल ये चेक करवाते हैं। अच्छा, पहली बात तो मतलब कि क्वेश्चन से छोटे तो जो 2 से 3 लोग हैं ना, ये एक अच्छी खासी टीम होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप टीम बिल्ड नहीं की। ऑप्टिमल टीम साइज जो होता है वो 3 से 5 लोगों का होता है। तो अगर आपकी 3 लोगों की टीम है तो यू हैव ऑलरेडी मेड अ टीम, और कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। 3 लोगों को इकट्ठे रखना ना बहुत मुश्किल काम है। 6 लोगों के किया था, और मुझे पता है मेरे आज तक मेरी ज़िंदगी कितने अज़ाब में मुब्तला रही है। तो यू ऑलरेडी हैव द टीम, डोंट वरी अबाउट दैट। सेकंड थिंग कि फिर MVP बनाने में भी टाइम लगता है, और डेफिनेटली वो भी आप लोगों को लगेगा। उसका आसान तरीका ये होता है कि थोड़ी आसान चीज़ों से शुरू कर लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप वेब पोर्टल बनाना चाहें, पोर्टल पे जो आपको फीडबैक चाहिए, इनिशियली आप ऐसा करें कि आप कोई गूगल फॉर्म पे सर्वे बना के लोगों से पूछ लें। अभी वेबसाइट बनने में तो टाइम लगेगा ना, ये मोबाइल एप्लीकेशन बनने में तो टाइम लगेगा। कस्टमर फीडबैक आप सर्वेस के थ्रू ले सकते हैं, या आप जो आपके फेलो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पता आपका स्टार्टअप एग्जैक्टली क्या है, पर आपके फेलो एंटरप्रेन्योर्स आपके कस्टमर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट आई एम डूइंग इज, साद इज माय कस्टमर एज वेल। तो मैं साद के साथ डिस्कस कर सकता हूँ कोई भी नया आइडिया आता है। साद, ये चीज़ है, मैं ये लॉन्च करने जा रहा हूँ, सो विल यू बाय दिस and how much will you pay for this? तो साद will tell me कि हामिद भाई I'll pay $50 for this। मेरे जहन में शायद $60 था, लेकिन मैंने साद को कुछ नहीं बताया मेरे जहन में क्या था। मैंने साद से वैलिडेट करवाया, साद ने कहा कि मैं 50 पे करूँगा। तो बट आई विल डू, उसकी प्राइस अब जहन में ही रिवर्ट करके 40 पे सेट कर दी। 50 पे भी नहीं, 40 पे, बिकॉज आई वॉन्ट टू सरप्राइज हिम। वाओ, आपकी एक्सपेक्टेशन से भी कम है। ठीक है, तो इस तरह की सर बेसिकली बोलते हैं फोकस ग्रुप डिस्कशंस। फोकस ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं आप अपने नोट्स के साथ, वेज कंडक्ट कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट का सिंपलेस्ट वर्जन बना सकते हैं। लीन स्टार्टअप कहता ही ये है कि डोंट गो फॉर एवरीथिंग, सिर्फ बेसिक सा वर्जन बनाएं। एक वेलकम पेज बनाएं प्यारा सा, सिर्फ एक सिंगल पेज, उस पर अपने स्टार्टअप के बारे में सारी मालूमात लिखें और चेक करें कि लोगों का क्या फीडबैक है। सिंपल, मैंने तो ऐसे स्टार्टअप्स भी देखे हैं, वो अपना पिच डेक जो होता है ना, स्लाइड्स बनी होती हैं प्रेजेंटेशन, वो चिपका देते हैं वेबसाइट पे, और उसी पे वो कस्टमर फीडबैक चेक कर लेते हैं कि लोग यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। आई हैव डन दैट। मेरा एक एग्रीटेक का आइडिया था रिसर्च बेस्ड, जिसपे हमने ग्रांट भी विन की। तो एट दैट टाइम जब हमने ग्रांट विन करनी थी तो वेबसाइट हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो मैं चूंकि खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो व्हाट आई डिड कि मैंने पिच डेक को HTML में कन्वर्ट किया, और आधे घंटे के अंदर अंदर वेबसाइट खड़ी हुई। ठीक है, तो ऐसे भी करते हैं समटाइम स्टार्टअप्स। डोंट वेट परफेक्ट डिजाइन और परफेक्ट PHP कोडिंग, यू नो, ऑल दोस साइंटिफिक स्टफ। जो आपकी कैपेसिटी मिनिमम हो सकता है वो करके शो करें कस्टमर को उसका फीडबैक। ठीक है जी, आई आंसर्स योर क्वेश्चन। सो डू वी हैव एनी अदर क्वेश्चन? Yes, जी, Nimra, एक you may है। ask. सर MVP का पर्पस क्या होता है? MVP का पर्पस ये होता है कि जो आपका फुल फ्लेज प्रोडक्ट है उसको तो बनने में टाइम लगता है ना, तो उसी का ही एक सादा सा वेरिएंट बना के अपने कस्टमर से फीडबैक लेते हैं। कि ऐसा ना हो कि आप पूरा प्रोडक्ट बना लें और एंड पे कस्टमर आके कहे ये क्या बनाया, मैंने तो यूज ही नहीं करना। उसका एक सिंपलेस्ट वर्जन बना के आप कस्टमर का फीडबैक लेते हैं उसको। तो ये मकसद होता है MVP का। और MVP शुड नॉट टेक मोर देन 3 months। MVP आप लोगों ने इस तरह का बनाना 3 महीने के अंदर, जब फुल प्रोडक्ट तो 3-3 साल में भी बनता समटाइम, तो बड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये मकसद होता है MVP का। जी तैयार। जी जी निम्रा, पूछे आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया निम्रा? फर्स्ट, Nimra, I guess have some other point. यस You can यस ask. यस निम्रा, यू मे मैंने आस्क। आपने बोला कि हम फीडबैक लेंगे, तो फीडबैक लाजमी है कि सोशल मीडिया के थ्रू ही लिया जाए, जबकि मेरा स्टार्टअप जो है वो फिजिकली बिजनेस है, तो लाजमी तो नहीं है कि हम सोशल मीडिया इस्तेमाल करें। यस,
आपकी आवाज दरमियान में थोड़ी कट गई थी, लेकिन जो मुझे समझ आई है वो ये आई है कि आपकी जो वैलिडेशन है और जो मार्केटिंग है, नॉट नेसेसरीली आपको इसके लिए सोशल मीडिया यूज करना है, कोई लाजमी नहीं है कि सोशल मीडिया यूज करना है। आप लोग कन्वेंशनल बेस से भी मार्केटिंग कर सकते हैं। और आप लोगों की माशाल्लाह वो शक्लें देख के मुझे लग रहा है कि आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स भी हैं। तो स्टूडेंट्स के पास जो सबसे बड़ा एसेट होता है वो होती है आपकी यूनिवर्सिटी। गो टू योर फेलोज। आप लोग डेली यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहां पे 700-800 हज़ार बच्चा आया होता है, तो आपके पास तो एक ऑलरेडी बड़ी पावर है। यू डोंट नीड टू गो टू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया तो एक जंगल है ना, उसमें तो जंगल में आप सबको दे देते हो कि ये लो भाई, तुम भी बताओ, तुम भी बताओ, तुम भी बताओ, तो वहां तो हर एरा गैरा नथु खैरा आया होता है। आप लोग यूज करें, आपके पास जो पावर है दैट इज द पावर ऑफ योर यूनिवर्सिटी, योर कॉलेज, योर एकेडमी, योर इंस्टीट्यूट, उसको आप यूटिलाइज करें और उसको एक्सप्लॉइट करें। जी Nimrod, did Mr. Hamid answered your question? Yes, clear. Okay, thank you, Hamid bhai. Yes, Tayyab. सर मेरा सवाल ये था कि आपके पास पहले से ही आपका प्रोडक्ट फुल्ली अलेज डेवलप है, तब भी आप कुछ कि आप MVP बनाएं, मतलब उससे उसकी वेरिएंट डाउन करें और फिर उसे मार्केट में लॉन्च करें। नहीं, MVP बेसिकली एक एंट्री पॉइंट होता है कि जब आपका प्रोडक्ट अभी रेडी नहीं है तो आप MVP बनाते हैं ताकि आप जल्दी से लोगों को कुछ दिखा सकें, ठीक है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी बना हुआ है तो फिर आपको उसको डाउनग्रेड करने की और MVP बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन सम केसेस MVP इज़ गुड। फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोडक्ट है, एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका रोबोटिक्स का स्टार्टअप है, आप रोबोट बनाते हैं। अब आप हर जगह साथ बैग में डाल के रोबोट तो नहीं लेके जा सकते ना। आप एक छोटी सी कोई IoT की डिवाइस बना लेंगे और उस डिवाइस को दिखा के कहेंगे कि जैसे ये डिवाइस चलती है हमारा रोबोट भी ऐसे ही चलता है। तो दैट डिवाइस इज एक्चुअली योर MVP। वो आपने छोटा सा एक मॉड्यूल बनाया है जिसमें आपने 4-5 फंक्शन डाल दिए हैं, कोई लाइट जला रही है, कोई सेंसर लगा दिया है। रोबोट में भी बेसिकली ये चीजें होती हैं ना। सो हैविंग एन MVP ऑलवेज गुड थिंग। सर और मिसाल के तौर पे जैसे आपने कहा है कि ना रोबोटिक्स का सेटअप है, तो अगर हम रोबोट ना बनाए, उनके सामने जिनको हमने दिखाना है अपना प्रोडक्ट, एक वर्चुअल हम एक चीज बना दें, वीडियो या वर्चुअल ऐसी थिंग बना दें कि उन्हें पता चल जाए कि हमारा आइडिया क्या है, तो इसे हम MVP कहेंगे। कह सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं कि उनका प्रोडक्ट जो है वो बहुत महंगा होता है, उस पर बहुत सारे पैसे रिक्वायर्ड होते हैं, हाईली इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड होती हैं। तो वहाँ पे आप ये जो वर्चुअल रियलिटी और इस तरह की जो चीज़ें हैं वीडियो के थ्रू भी बता सकते हैं, क्योंकि मकसद होता है बात समझाना और थोड़ा सा अगले बंदे को कॉन्फिडेंस देना कि जी मैं ये कर सकता हूँ। MVP का मकसद यही होता है कि वो एनालाइज करना चाह रहा होता है कि आप जो बातें कर रहे हैं सिर्फ बातें कर रहे हैं या आपको वाकई कोई 2 लफ्ज आते हैं इस फील्ड में। तो इन केस ऑफ फ्यू स्टार्टअप्स यस वीडियो वर्क्स, इन केस ऑफ फ्यू स्टार्टअप्स इवन अ वेब पेज डज वर्क। और कुछ स्टार्टअप्स जो कि मोस्टली रिसर्च की डोमेन में होते हैं, क्योंकि रिसर्च में आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता, तो इवन आपका एक स्लाइड डेक जो होता है, प्रेजेंटेशन जिसे हम कहते हैं, वो भी काम कर जाती है, वो भी कहते हैं ठीक है गुड थम्स अप। रिसर्च प्रोजेक्ट की मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने एक रिसर्च प्रोजेक्ट करना है, मैंने कहा कि मैं पूरे पाकिस्तान के रूरल एरियाज के लिए ये रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। अब उसका MVP क्या होगा कि मैंने एटलीस्ट 2-3 रूरल एरियाज में किया हो, बिहाड़ी में किया हो, सखर में किया हो, एक आधे किसी और रूरल एरिया में किया हो। तो दिस इज माय MVP कि मैंने ये 2-3 इलाकों में किया, उनका रिसर्च डाटा है मेरे पास, और अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं पूरे पाकिस्तान में भी कर सकता हूँ। तो ये वाली मेरी बात स्लाइड पे भी लोग मान जाएंगे, वीडियो में भी मान जाएंगे, ठीक है जी। जी बिलाल, आई गेस यू हैव सम क्वेश्चन, यू कैन आस्क। सर आप 6 जो से प्रोजेक्ट एक साथ कैसे रन कर रहे हैं? ये बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज नहीं होगा? और इसको सेल्फ ऑटोनोमस किस तरह आपने बनाया होगा? और क्लाइंट का फीडबैक आप किस तरह मेजर कर रहे हैं? पहली चीज़ जो है ना, जैसे मैंने भी पिवट आप लोगों को समझाया ना कि पिवट होता है सेम डोमेन में ही रहते हुए, ठीक है, डोमेन नहीं हम चेंज कर रहे। तो हमारे जितने भी 6 के 6 प्रोजेक्ट्स हैं उनके बैक पे जो मॉडल है ना, दैट इज कॉल्ड शेयरिंग इकोनॉमी, मॉडल सेम ही है। हमने डोमेन नहीं चेंज, मॉडल नहीं किया, हमने इंडस्ट्री स्विच की। इस सेम मॉडल हमने पहले प्रिंटिंग इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट किया, हमें समझ आई हो जाता है। फिर हमने इवेंट्स में किया, हमें अच्छा फीडबैक आया, ठीक है हो जाता है।
फिर हम एग्रीटेक में भी सेम मॉडल के साथ गए, फिर हम एडटेक में भी सेम मॉडल के साथ गए। तो वट एवर वी आर डूइंग, द मॉडल इज सेम, द बैकएंड टेक्नोलॉजी एंड फिलोसफी इज सेम, द टीम इज सेम। उस वजह से वो 6 लगते नहीं है, वैसे ही लगता है कि जैसे एक ही स्टार्टअप की 6 कैटेगरीज हैं, ठीक है। लेकिन ऑन ग्राउंड एक्चुअली वो 6 की 6 इतनी डाइवर्स फील्ड्स हैं कि वो 6 अलग स्टार्टअप्स हैं। और अगली चीज आपने कहा ऑटोनोमस कैसे किया हुआ है, हमने इस तरह हुआ है कि इवेंचुअली तो ये सारे के सारे एक अम्ब्रेला का पार्ट है। दैट अम्ब्रेला इज शारो टेक्नोलॉजीज, दैट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर ऑलमोस्ट 3 years। लेकिन इनकी अपनी अपनी भी एक टीम है। वो जो प्रिंटिंग वाला सेटअप है printable.pk, उसकी एक अपनी टीम है। जो फैशन ई कॉमर्स का fashion.pk है, उसकी अपनी टीम है। एडटेक वाले की अपनी टीम है, एग्रीटेक वाले की अपनी टीम है। जो फाउंडर है वो उन सबका कॉमन है। सो दैट इज द मेन पॉइंट कि जहाँ पे सारे आपस में कॉन्टेक्ट उनका डेवलप हो जाता है, बॉन्डिंग हो जाती है। और दे ऑल पे शारो टेक्नोलॉजीज इवेंचुअली। तो इवेंचुअली वो शारो टेक्नोलॉजीज का पार्ट है, अम्ब्रेला वही है। तो इस तरह से हमने उनको ऑटोनोमस भी रखा हुआ है, लेकिन फुली ऑटोनोमस भी नहीं रखा हुआ। कहीं ना कहीं वो एक सेंट्रल बॉडी का पार्ट है, क्योंकि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको चाहिए होती हैं, उसके लिए आपको एक लीगल फ्रेमवर्क भी चाहिए होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी चाहिए होता है, ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। सो दैट इज शारो टेक्नोलॉजीज फॉर ऑल दी स्टार्टअप्स। जी, आई गेस Iza, do you have some question? So we are running short of time. So yes. Please be Little little question. लास्ट Yes. अच्छा सर, अभी जैसे आपने बात की कि 6 to 7 स्टार्टअप्स पे आप काम कर रहे हैं और प्राइवेट पॉइंट सेम है। तो अगर आप एक इस तरह का काउंसलिंग वाला सिनेरियो अगर लें और उसमें हम करियर काउंसलिंग भी प्रोवाइड करें और साथ यूथ की अगर जो उनकी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं और फ्रस्ट्रेशन है तो वो भी काउंसलिंग हम उनको दे रहे हैं। तो अब दिस इज डिवाइडेड इनटू हेल्थ एंड एजुकेशन। तो ये सेम ही स्टार्टअप होना चाहिए दोनों को फोकस करते हुए, या दोनों को अलग अलग होना चाहिए? व्हाट डू यू सजेस्ट? आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना, आप इसको सेम लेके चल सकते हैं। और दूसरी बात ये कि दोनों इतने क्लोजली कपल्ड हैं, एक का दूसरे पे ताल्लुक है, दूसरे का पहले पे ताल्लुक है, तो मेरे ख्याल से तो ये एक ही डोमेन है, इसको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि इसको अलग करने में आपको काफ़ी मुश्किल आएगी। कुछ चीज़ें इतनी हाईली कपल्ड होती हैं कि उनको अलग करना मुश्किल होता है, कुछ चीज़ें इतनी अलग होती हैं कि उनको कपल करना मुश्किल होता है। आपका वाला तो ऑलरेडी हाईली कपल्ड है, आपको उसको अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं आपको वैसे ही एक पॉइंट बता देता हूँ, द काइंड ऑफ स्टार्टअप यू आर टॉकिंग अबाउट, पाकिस्तान में मोस्टली इस तरह के काम NGOs करती हैं, स्टार्टअप्स नहीं करते। क्योंकि हमारे यहाँ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का आइडिया अभी काफ़ी नया है, लोगों को नहीं समझ आती ये बात। बट आई वुड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर डूइंग दिस, क्योंकि हमें सोशल एंटरप्रेन्योर्स की बहुत ज़रूरत है। एंड स्पेशली इफ़ यू आर वर्किंग विद देन फाउंडेशन, तो यू ऑलरेडी एट अ जो कि एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर है और आप भी इसको कर सकते हैं। सो साद वुड बी गाइडिंग यू जो स्टार्टअप को कैसे लेके चलना चाहिए, और इसको आप इकट्ठे ही लेके चलते हैं, अलग अलग ना। For sure. So thank you so much, everyone, for joining this session, especially Mr. Hamid. It was really nice. It was really a nice session with you. Please switch on your cameras, everyone, for a group photo, so we can make it a memory for our coming days. Yes. So Muhammad Ahmed, Mashal, Laiba, Divya, Jasia, please switch on your cameras, everyone. So we will wait for 10 seconds. Okay, so I think they might have some issues while opening the camera. So सारे कोई एक रिएक्शन देके मैं चाह रहा हूँ कि कोई पिक्चर लें, तो गिव इट अ रिएक्शन. So yes. So thank you very much again for joining this session. I hope to see you soon in the very next session by Then Foundation. A great personality from IBA Karachi is joining us in the very next session. So hope to see you soon again. Thank you so much Ahmed bhai again for joining this session, and I hope कि जो हमारे startups हैं इन्होंने learn किया होगा आपसे, and eventually we will make these superstars as the superstar entrepreneurs, inshallah. So Inshallah. Thank you so much, Ahmed. Thank you very much everyone for joining. Thank you Saad for inviting me for today's session. Take care everyone.
अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।